हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और वीडियो फ्रॉम द क्लास 12 चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी सीरीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा हम लोगों ने कहा था कि हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर डेडिकेटेड वीडियोज लेकर आएंगे, एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो प्रॉमिस हमने रखा है। और आज इस वीडियो का एजेंडा है टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करना। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट आर द पीपल हु हैव द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, कंपनी में ये सबसे हाई लेवल पर बैठे उच्च इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके हाथ में प्लानिंग की सारी पावर होती है, प्लान्स की सारी पावर होती है, एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। प्लान्स है, पॉलिसीज है एंड ऑब्जेक्टिव्स है। नाउ who are these people? These people are generally the managing directors, chief executive officers, chief financial officers, chief production officer, etc., etc. Okay, so before going into the details and the importance, what are the functions of the top level management, आइए एक proper English definition जो आप अपने आंसर में भी यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। So top level management, as we have consists of chief executive officers, directors, etc. The top level management is the ultimate source of authority. आप लोग इसको अंडरलाइन करके रखिए, यहां पर मैं आपके लिए ये चीज हाईलाइट कर दे रहा हूं सो दैट कि आपको भी आगे अपने आने वाले इसको यूज करने में आसानी हो। ओके, नाउ इट सेज इट मैनेजेस गोल्स एंड policies for an enterprise, manages goals and policies for its enterprise। दोनों चीजें, ऑब्जेक्टिव, गोल्स मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड, I'll just write this for you, objectives and policies, दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? दोनों के लिए जिम्मेदार होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। Then it says it devotes more time planning and coordinating functions. It devotes more time on coordinating functions, planning, plans बनाएंगे, coordinate करेंगे। coordination होता क्या है सर? coordination अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। स्टार्ट करते हैं। What are functions of top level management? top level management, देखिए, point number 1, it says lays down the objectives and broad policies of the company, as we had discussed earlier। objectives बनाएंगे, plans lay down करेंगे, most important task of the top level management। Then we have issues necessary instructions for the departments, budget procedures, etc. The release of the budgets, the making of the budgets, what will be the allocation of the fund that will be going into kinds of projects, ये कौन तय करेगा भैया? ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तय करेगा। Then we have our third point, it prepares strategic plans and policies, strategic plans and policies for the company। प्लान्स तो भाई हम समझ में आ रहा है दैट व्हाट आर गोइंग टू बी प्लान्स फॉर द कंपनी। पॉलिसीज क्या? पॉलिसीज मतलब रूल्स रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो वन इज अलाउड to actually roam around in the factory without their helmets on. You will not be allowed into the factory without having the proper factory shoes, वो मोटे मोटे जूते जो होते हैं, ये सब पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होता है। यू आर नॉट अलाउड टू टेक ब्रेक एंड ऑल एवरीथिंग। ये सारी चीजें कौन तय करता है? ये कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट ही तय करती है। ओके, देन वी हैव आवर नेक्स्ट पॉइंट, इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर द management, the departmental managers। Obviously the top level management take care who will be appointed in the subordinate level just below them, subordinate level just below them। Then we have our next point, controls and coordinates activities of all the departments। When we talk about all the departments, what are the different departments that are there in any company? We can say namely there can be production, there can be sales, there can be marketing, there can be HR, etc., etc. So in that case, each of the heads of the departments, the managers of all the departments, are then associated or actually selected by the persons who are sitting just above them in the top level management। It is one of the functions that they also perform। Next we have, it is also responsible for maintaining a contact with the outside world। देखो भैया, ये तो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से, दैट अ कंपनी नीड्स टू हैव a proper connect with the outside world because हम लोग कितनी भी बातें कर ले कि कंपनी खुद में काम करती है, खुद के लिए काम करती है, खुद का ऑब्जेक्टिव एंड एवरीथिंग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कंपनी ऑल्सो वर्क्स इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट।
अन आउटसाइड वर्ल्ड कम, और आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या आ गए, कस्टमर्स आ गए, उसके कॉम्पिटिटर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सबके साथ कनेक्ट बना के रखना किनका काम है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव provides guidance and direction. Yes, the senior most people will definitely be the most experienced ones in the company, and experience doesn't have any substitute. तो उन लोगों से कंपनी के बाकी लोगों को गाइडेंस और डायरेक्शन का बेनिफिट मिलता है. They will be helping you, they will be guiding you, they will be showing you the correct direction in which you need to put your work and effort into. Okay, हो सकता है कि आपके बुक में इतने डिटेल में आपको इंपॉर्टेंस है या फंक्शंस है नहीं दिया गया हो, कोई बात नहीं, आपको भी ज्यादा याद नहीं करना, 5 याद रखेंगे सो दैट अगर 6 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप वहां पर मतलब समझाकर 5-6 इंपॉर्टेंस या फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिख सको. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग आखिर होते कौन है. ओके, नाउ सी चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, देन वी हैव then we have joint managing director. There is a typing error here. There will be joint managing directors. Then we have chief executive director, chief operating officers, director, president, vice president. ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा, स्वीट एंड सिंपल सा टॉपिक था. मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में. ओके, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग.